Hey guys, and welcome to Nerdcast Mini, where we have a short film discussion. Today we are going to discuss the Bosch launch of the Cyberpunk 2077. Since you are primarily the gamer of our group, why should you should start with what exactly happened with the whole launch? So CD Projekt Red discussed with us that they were sending letters on Twitter, the Twitter handle, that the game was ready for PC, PS5, and Xbox Series X, but it was not ready for previous gen consoles. Yeah, So they already knew it wasn't ready. yeah, But I think because of the pressures that investors were like pounding on developers, they had to launch that game yeah, because the game got delayed for like 4 to 5 times. yeah. इसका original launch क्या था? Launch कब का था? If you remember, it April was something. April, right? Yeah, yeah. काफी delay हो गया था. And considering that with the pandemic, since games were already selling much higher, investors को जल्दी से जल्दी भी रही होगी कि नहीं जल्दी से जल्दी निकालो, in the Yeah, middle of the see, pandemic. the problem is जितने भी open world games है ना, they take a lot of time to develop, Yeah. and their testing is like on a plus minus basis. Like they don't test the whole game on each and every system. Yeah. The whole testing phase begins like first 6 months Yeah. of the game launch. When the game launches, the first 6 months is like testing, Yeah. like It's alpha or considered beta alpha version beta of. version. Yeah, exactly. It's like Yeah, we are the customers, but we are still basically the beta users for the first, few yeah, months. Like same cheat I experienced with Microsoft Flight Simulator. Like when it came out, it had bugs and bugs. Like इतने bugs है कि like control yes. बिल्कुल खराब थे. So but it over time धीरे धीरे करके improvement करते जा रहे हैं. They are giving out the letters and everything कि नहीं अब ये improve करेंगे. Next time हर update में something is improving. तो इट्स लाइक द सेम थिंग विद साइबरपंक. लाइक अभी धीरे धीरे करके दो तीन अपडेट आएंगे, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा. See, बट there are पीपल लाइक already कि मैंने पे कर दिया, मुझे अभी का अभी वो चीज एग्जैक्टली सही चाहिए. see, the problem is कि this is not the only game जो bugs and glitches के साथ आया है. क्या? When Horizon Zero Dawn launched for PC, वो गेम बहुत गंदा क्रैश हो रहा था. क्या? वो गेम ने इतने लाइक मैंने भी डाल के देखा. द फर्स्ट कट सीन आई गो थ्रू एंड एक मैं शॉर्ट प्रोलॉग का एक मिशन कंप्लीट करता हूँ, गेम क्रैश हो जाता है. I was like, I'm not gonna play this until they fix this. And that game is not crashing now, but that game is still in development. या I mean, बट इट्स नॉट लाइक यू आर आस्किंग because फॉर अ रिफंड नाउ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. yeah, When we hey, are see, paying the developers for the game, we are basically our like investors in ourselves. Like we are trying that वो developer और अच्छे से develop करे, तो हमने पैसा पेमेंट कर दिए. Now their work is to improve upon it. Like see, तुम there पहले are a से lot आइडियल. of games like that. Like Witcher 3 भी उन्होंने ही बनाया. या Witcher was mess for like half a year, I think. या Witcher was a complete mess. Over the time, they fixed all the bugs. या Even Red Dead रेड was डेड the के तो same. कितने, हाँ, रेड Red डेड के Dead कितने बग was थे स्टार्टिंग में यार. like Red Dead को गालियां पड़ी है. रॉकस्टार ने इतनी गालियां खाई है. सो व्हाट हैपेंड इज जो GTA का डिवीजन था उन्होंने सेट किया था, वो पूरा उन्होंने रेड डेड पे रेड डेड शिफ्ट पे कर थे. दिया. हाँ. तो वो तब जाके वो गेम अभी बना है कि रेड डेड ऐसा गेम है, इवन या विद बग्स एंड फिक्सेस. या एंड द वन पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर पॉइंट इन ऑल दिस इज दैट if you're going to port a PC game to console or a console game to PC, it is very hard to do that. या Bugs आएंगे ही. या And see, it happened with Assassin's Creed Valhalla because वो गेम पहले Xbox Series X के लिए बना था exclusively. फिर PlayStation एंड उसके लिए बना था, बट वो गेम बाद में पीसी में पोर्ट किया. उसमें एन नंबर ऑफ बग्स थे. लाइक कट सीन में लोग उसके मुंह के सामने से जा रहे कट सीन में. या सो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उनको. एंड हर एक का यूबीसॉफ्ट तो ऐसा ही करता है. यूबीसॉफ्ट जस्ट रिलीज द गेम, वो 6 मंथ उनका फेज रहता है कि वो पूरा गेम इंप्रूव करते हैं, या फिर डीएलसीज के लिए रेडी रहते हैं. रेडी रहता दैट्स है. हाउ या इट वर्क्स. तो इवन लाइक द क्रू 2 व्हिच वाज डेवलप्ड बाय यूबीसॉफ्ट, तो तुम उसको एक्सप्लोर करोगे तो तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे इतने बग देख के. बट इट्स लाइक तुमको गेम का एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है. इट्स नॉट लाइक कि बग से गेम खराब हो रही है. इट्स नॉट लाइक इट्स हिंडरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द गेम, See, राइट? some games are affected by bugs. Okay, I agree with you that. But in open world games, if you're like walking on a street, going on a या stairs, and you see one guy inside the stairs,
Yeah. तो वो तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ से खराब कर रहा है? Yeah. इट्स नॉट इन द कट सीन्स, Yeah. इट्स नॉट इन एनिमेशन, Yeah. तुम बस रैंडम रोम कर रहे हो एंड यू आर नहीं, द गेटिंग दिस सेम बग। लाइक, बट ये तुमने एक एग्जांपल दिया, मैं इससे बड़ा एग्जांपल दूं। द क्रू बेसिकली व्हाट इट डिड, दे बेसिकली मेड द होल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इनटू इन द इनसाइड द गेम। तो उन्होंने मैक्सिमम सिटीज को ले लिया, बट उसमें भी बग्स रहे कि एक जगह एक्यूरेटली बिल्डिंग नहीं बनी है या कुछ किया, तो उसको तुम मतलब एक उसको हर लेवल पे जाते जो साइंस है वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब वो 25 माइल बता रहा है आगे, फिर 27 पे 25। तो बट इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस तो नहीं खराब हो रहा है, यू कैन स्टिल सी द मैप एंड यू कैन स्टिल फिगर इट आउट। तो बहुत छोटे छोटे लाइक ओपन वर्ल्ड गेम्स स्मॉल में, थिंग्स कैन नॉट अफेक्ट योर गेम प्ले, राइट? या एग्जैक्टली लाइक फ्लाइट सिमुलेटर में भी कितनी बार होता है कि जो एनपीसी है, जो लाइक गाड़ियां चल रही है वो एक के ऊपर एक चल रही है, बट तुमको तो हवाई जहाज उड़ाना, तेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे क्या हो रहा है? वो अपने बाद में डेवलपर ठीक कर देंगे बाद में धीरे से। इट्स नॉट लाइक इट्स हिंडरिंग योर एक्सपीरियंस, इट्स नॉट लाइक इट्स मेकिंग द गेम प्ले बैड। What happened is Xbox and PlayStation, like console user, first time received a bad port. Yeah. Like PC वालों को, like PC gamers को आदत है कि वो बहुत सारे bad port झेल लिए, उनको पता है कि game over the time अच्छा हो जाता है. Yeah. But this was the first case for console players. Yeah. So maybe that's why it's a big issue for them actually. Like another thing that I would talk about here is normally जैसे मैं हूँ, तो if I buy some game and I find out hey my PC is not capable of handling it, अभी ऐसा कोई गेम नहीं है, बट सपोज करो इन फ्यूचर इट विल नॉट बी लाइक कि मैं को रिफंड करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है मैं खरीद के रखता हूँ, द मोमेंट आई अपग्रेड द ग्राफिक कार्ड और समथिंग अबाउट माय पीसी, वो मैं गेम खेल लूंगा। एक्चुअली क्या है कि अभी तक जब कोई कंसोल पे गेम आती थी तो दे यूज टू लिमिट इट कि वो गेम वही गेम लॉन्च करते थे कि दैट इज लाइक कैपेबल ऑफ प्लेइंग इन दैट कंसोल। तो बंदे को पता होता था 1080p 30 FPS तक आना चाहिए, तो वो बंदा वो गेम खरीदता था, तो ही वुड हैव एक्सपेक्टेड कि वो गेम मेरे कंसोल पे चलेगी। पहली बार हुआ कि PS4 और Xbox पे इट वाज रनिंग एट 14 to 15 FPS, एंड पहली बार किसी कंसोल यूजर को लगा होगा हे मेरा मतलब मेरा कंसोल इज नॉट पावरफुल एनफ। अभी तक कंसोल तुम लेते थे तो इट नॉट मेड फॉर दैट काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम कि यू हैव टू अपग्रेड योर सिस्टम। यू गेटिंग माय पॉइंट? पीसी वाले हम लोग तो स्टार्टिंग से उस कांसेप्ट पे रहे, बचपन से ही हमने उस कांसेप्ट पे रहे, लाइक इवन इफ तुम ये देख रहे हो कि द गेम वाज लाइक 7 years in development, the game was not like 7 years in development. The game was announced 7 years or 8 years ago. Yeah. After Witcher 3's second DLC and all the enhancement part of it. Yeah. Like वो खत्म होते होते which is like 2015 खत्म हो गया तब तक. Yeah. So the development kind of started from mid 2015 and right now it's here. Yeah, उसके बाद भी देखो ना तुम, डेवलपमेंट इज नॉट ऑल जस्ट द कोडिंग। तुमको पहले स्टोरी बनानी है, यू हैव टू फिगर आउट द, पहले तुमको स्टोरी परफेक्ट करनी है, देन यू हैव टू परफेक्ट द कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद यू विल गो इनटू कोडिंग द होल गेम, राइट? तो वो प्रोसेस है पूरा। इट्स नॉट लाइक स्टार्टिंग तुमने गेम सोचा एंड देन यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग आउट द कोड फॉर इट, इट्स नॉट द होल थिंग। And cutscenes बनाने, and CD Projekt Red doesn't do cutscenes like what Ubisoft does. Ubisoft क्या करता है, कैरेक्टर लेता है और उसके सामने कैरेक्टर, ये मतलब ग्रीन स्क्रीन वगैरह पूरा सूट वूट करके ये मतलब शॉट लेते हैं, उसको वहां से एफेक्ट सेट करके इधर गेम में लाते हैं और उसके बाद वो ऐसा होता है, सेट होता है। तो बट वही बोल रहा था, इतना जितना मतलब जैसे अभी एक वो भी हुआ है कि लॉ सूट कर दिया इन्वेस्टर्स ने डेवलपर्स के ऊपर, तो तुमने खुद पहले बोला कि तुम टाइम पे तुम जल्दी निकालो गेम को, and then you are putting up a lawsuit, like it doesn't make sense. See, the problem is this is not the only game who has faced a lawsuit. There are multiple games और कुछ नहीं कर पाए इन्वेस्टर्स, या जिसने भी लॉसूट किया कुछ नहीं हो पाया। Even if it's like a breaking the trust, but Cyberpunk ने 13 million copies sell किया है। Exactly. It's like with their bugs, glitches and all over that. It is still the highest selling game of the year. Yeah, exactly. Yeah. Like it's like Apple is putting up a lawsuit on itself कि मेरा iPhone ज्यादा नहीं बिका, it's like 10 million unit कम बिके, but still 40 million unit बिके होंगे। That's what I'm thinking. You are already the best selling game of the year. You cannot expect more out of that. See, exactly. देखो मेरे को भी मतलब मेरे पास भी है Cyberpunk, but कैसा होता है कि मुझे पता है कि this is like a trial and run phase. Yeah. Because I've been a fan of Ubisoft games like Assassin's Creed only. बट मुझे पता है कि इनका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे जाता है। ये लॉन्च करते हैं 6 महीना ये सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। एक फिक्स आता है, दूसरा फिक्स आता है, तीसरा फिक्स आता है,
after 6 months that game becomes stable. एंड मेरे को इस चीज का आदत है. एंड GTA 5 का भी तुम अर्ली बिल्ड देखोगे वो बहुत गंदा था. बहुत गंदा था यार, बहुत गंदा था वो. इट वाज लाइक वेरी बगी मैस. लाइक तुम इमेजिन ही नहीं कर पाओगे. तुम वो देखते तो तुम अभी का GTA क्या है और वो लाइक तुम अप्रिशिएट करते हो उसको. लाइक अभी क्या है कि जितने भी नए नए मैं बच्चे बोलूंगा, बट जितने भी नए नए लोगों ने फ्लाइट सिमुलेटर इंस्टॉल किया, वो ये भूल गए कि जब पहला जो इससे पिछला माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर एक्ट था, तो दैट लॉन्च इन 2007, बट उसका परफेक्शन कब आया? सारे मतलब व्हाट यू कॉल एक्सपेंशन पैक्स और सारे व्हाट यू कॉल वो क्या तब हमारे विंडोज एक्सपी के टाइम पे होते थे ना, वो जो हर अपडेट आता था सर्विस पैक आते थे, तो तब गेम के सर्विस पैक्स आते थे इनके. तो मेरा गेम लाइक 2007 की गेम 2014 पर जाकर it became like bug free and everything. 7 years that game took. अभी तुमको देखो एक महीने में इतने सारे बग फिक्स हो रहे हैं. I'm seeing like the advancement, और उसके बाद भी you are like no I want a refund or the game is not up to the mark. तुम $100 में इतना घंटे खेल चुके हो तो तुम चुपचाप बैठो भाई. The game has already got like 4 updates. Yeah, the game has already received 4 updates. तो and हर दूसरे दिन अपडेट देख रहा हूं. 1.6 hot fix something आया है अभी. Yeah. But try to understand this from a developer point of view, because अभी मैं recently एक Unreal Engine पे मैं मतलब जब मेरे इंजीनियरिंग डेज में था, मैंने एक एनिमेशन बनाया था लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी में गन लेके भागते वैसा. आई जस्ट हैव टू डू दैट. तो वो करने में मुझे लाइक 10-12 दिन लग गए सिर्फ एनिमेशन बनाने में उसका भागने का गन पकड़ के. तो हाउ ठीक है मैं तो सोलो था, बट उनके लिए भी हार्ड होगा ना. अरे वो हार्ड नहीं, बट इट्स लाइक हार्ड हो ना हो, दे आर चिल एम्प्लॉइज. 8 घंटे काम करेंगे तो 24 घंटे तक काम करने नहीं बैठे. They have their own family and everything, and then we are the one, like not we the consumers are the one जो कि इनको गालियां दे रहे. like it's not even like क्यों इतनी ट्रोलिंग करनी है? like वो तो हर चीज में होता है यार वैसे देखा जाए. The problem is हाँ वो तो हर चीज का है, बट द प्रॉब्लम इज कि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहे लोग इसको. वो नेसेसरी आई थिंक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, बिकॉज फ्यूचर में क्योंकि GTA 6 तो मैं सब करने ही वाला है. मेरे को तो भरोसा नहीं है किसी भी गेम पे. मैं ये नहीं बोलता कि दे आर गोना लाइक मेस अप समथिंग वेरी बैड, स्टोरी खराब होगा, सब अच्छा होगा वो गेम का, बट उसमें स्टार्टिंग में ग्लिचेस बहुत हो गए. इट हैपेंड विद GTA 5 आल्सो, इट हैपेंड विद GTA 4 आल्सो. ग्लिचेस एंड ऑल दैट आर जस्ट टेस्टिंग उसका, क्योंकि पूरा कोई नहीं कर सकता. जहाँ प्लेयर कहाँ जाके क्या क्या करते हैं, तब जाके लोगों को ग्लिचेस एंड बग्स समझ में आते हैं. इतने वो हो सकते हैं, व्हाट इज दैट, इतने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि क्या होना है. You can't test up each and everything. It's the same thing like iOS आता है. It's not like iOS is perfect in the first iOS update. कितने glitches होते हैं like iOS 14.3, 14.4 पर जाके I know that तब जाकर सारे bugs fix होंगे. And that is why Apple, तो तुम बोलो जब सबसे वर्ल्ड की सबसे $1 trillion कंपनी 100% बग स्टार्टिंग से नहीं कर सकती, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लाइक रॉकस्टार गेम्स एंड ऑल टू डू इट? और इवन तुम सेम चीज और स्केल डाउन करो तो आज इंडी डेवलपर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बग फ्री गेम होंगे. नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. नहीं होता. और हमारा ये जो रिएक्शन है कि सीडी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट रिएक्शन है, इंडी डेवलपर खुद डिमोटिवेट होंगे खुद गेम डेवलप करने से. एग्जैक्टली वो चीज इनको देखेंगे होगा कि मतलब सी आई एम सेइंग इज कि तुमको डिले करना है करो, तुम बिंदास करो, नो प्रॉब्लम. बट तुमको डिले करना है तो तुम लोग सोच समझ के डेट दो कि 1 साल में तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि CD Projekt Red वाज लाइक ओके फॉर PS5, Xbox One एंड PC. वो रेडी थे उसके लॉन्च के लिए. बट उन प्रीवियस जेन कंसोल्स के लिए बिल्कुल उनको करना ही नहीं चाहिए. दैट्स द थिंग. उन्होंने बेसिकली जस्ट सच्ची बताऊं तो मेरे आई एम 100% श्योर वो इन्वेस्टर ने फोर्सफुली करवाया होगा कि लॉन्च की यूजर बेस काफी ज्यादा है PS4 और Xbox का, तो हाउ कैन वी लीव देम आउट. बट वो ये भूल गए कि वो तो कंपैटिबल ही, मतलब तुम मतलब वही है ना यार कि मैं क्या बोलूं अब. The game was not ready, that's it, for old gen consoles. वो दिखता है क्योंकि ऐसा 5-5 मिनट में कौन सा गेम क्रैश नहीं होता कभी. अरे इतने भी खराब पोर्ट नहीं होते. गेम प्ले भी तो देख सकते हैं, वही तो गेम प्ले देखते ही पता चल रहा है वो तो. हाँ वो अभी गेम प्ले का वो ठीक है रहे. इफ यू आर रनिंग लाइक अ 7-year-old, अभी मैं 7-year-old लैपटॉप लेके या पीसी लेके आऊंगा, उस पे साइबरपंक रन करूंगा, वो नहीं चलेगा वैसा. वही दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड सम पीपल आर लाइक कि मुझे रिफंड भी दो और मुझे गेम भी रखना है. 300 IQ क्या है ये? मतलब तुम रखो ना, गेम रखो तो पैसा भी देना पड़ता है ना उसके लिए. वही तो.
See, all we had to do is change our point of view. क्योंकि at the end हार्डवेयर ठीक है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है अपन, बट सॉफ्टवेयर है वो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव ही होने वाला है, वो डिग्रेड नहीं होगा कभी. सॉफ्टवेयर विल ऑलवेज इम्प्रूव. हार्डवेयर चल ठीक है कि हार्डवेयर इज रिवर्स ऑफ दैट, कि थोड़ा डिग्रेड होना शुरू होता है, बट सॉफ्टवेयर है उसको वो कर ही देंगे. एंड जैसा मिनिमम रिक्वायरमेंट में आया था, उन्होंने दिया था वो आई थिंक मार्च तक वो गेम एकदम लाइक क्लास हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, या despite of being all the mess they had, like bugs, glitches, crashes, everything, वो सब फिक्स हो जाएगा, उसका कुछ इशू नहीं है. या तब तक काफी टाइम भी मिल जाएगा, एंड पेंडेमिक की वजह से आई थिंक उनको डेवलपमेंट में रिसेंटली टाइम नहीं मिला होगा 3-4 महीना. भाई तुम लॉकडाउन में तुम कैसे मेंटेन कर पाओगे यार हर चीज, लाइक वर्क फ्रॉम होम भी करना है एंड गेम डेवलप करनी है इतनी बड़ी, लाइक ओपन वर्ल्ड गेम्स में ये इशू आते ही रहते हैं, नथिंग न्यू अबाउट इट. और कुछ लोग डेवलपर्स लाइक CD Projekt Red विल फिक्स इट, बट डेवलपर्स लाइक Ubisoft विल नेवर फिक्स दैट. बिकॉज मैं Ubisoft के प्रीवियस गेम्स खेला हूँ, वो गेम अभी भी अनऑप्टिमाइज्ड है. गेम में फ्रेम्स 30 तक गिरते हैं. लाइक आई वाज प्लेइंग ओरिजिन्स लाइक ईयर अगो मैं ओरिजिन्स खेल रहा था, तो उसमें एक सिटी अलेक्जेंड्रिया करके, उसमें मैं गया, मेरा फ्रेम सीधा 35 पे आ गया, 60 से 35. सो दैट वाज द ड्रॉप. वो तुमने अभी तक फिक्स नहीं किया, मतलब 3 साल पुराना गेम है वो. एंड सम पीपल लाइक रियली डोंट केयर अबाउट इट, बट ट्राई टू थिंक अबाउट इट. आई मीन क्योंकि तुम लोग तो सोचोगे इतने ज्यादा फेमस मेरे ख्याल से ये से ज्यादा नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू लाइक बैड सेट ऑफ पीपल हु आर हैंडलिंग सच गेम, like poor management of the of the tragedy when it comes to all of this stuff. Like you remember the whole fiasco that happened with EA and unka DLCs. pay to win, which is Ubisoft is moving right now. Like अभी क्या हुआ है, और मैंने रिसेंटली ओडिसी खेला, मैंने बहुत लाइक लिटरली बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज पढ़े उसके बारे में, ठीक है. बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने नेगेटिव रिव्यूज क्यों है, मतलब ये गेम के बारे में. इट वाज नॉट अ असैसिन्स क्रीड गेम एंड ऑल दैट, लाइक फाइन, बट असैसिन्स क्रीड का एक फीचर है कि गेम लिंक करता है वो, कि एक लाइन होती है, वो क्लिक करती है दोनों को, बस सेट है उधर. मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट उन्होंने क्या किया, जो मेन कनेक्शन है असैसिन्स के साथ, वो प्रोटैगनिस्ट का, उन्होंने वो DLC में डाल दिया. So which is basically pay to win. So what they are doing is just following the step of like EA. What more we can do? Nothing. मेरे को टू बी ऑनेस्ट इन गेम परचेजेस जब तक गेम को चेंज नहीं करे, मतलब इन द सेंस कि गेम प्ले तुम्हारा चेंज नहीं हो, तब तक आई एम सपोर्टिव ऑफ इट. स्किन्स हो गए, सब हो गया, बट द मोमेंट यू आर गिविंग लाइक तुम गेम को इस लेवल पे इंप्रूव कर रहे हो कि तुमने पूरा पैसा क्यों दिया फिर गेम को, फिर गेम की कॉस्ट बढ़ा दो, तुझे पैसा लेना ही है. इवन साइबरपंक ने वो किया है कि जो अपकमिंग DLCs आने वाले गेम के लिए, दैट वुड बी फ्री फॉर जिसने भी बाय किया है, एंड दैट शुड बी द मॉडल. ये ऐसा जो Ubisoft फॉलो करता है, आई थिंक ये सुधर गया है अभी, बट Ubisoft पे टू विन पे जा रहा है अभी. बिकॉज द रिसेंट रिव्यू आई वाज सीइंग ऑफ Assassin's Creed Valhalla, कि वो गेम लोगों को लग रहा है अभी भी अनफिनिश्ड है विद स्टोरी. तो उसके DLC आने के बाद अभी समझेगा कि वो पे टू विन है या नहीं है. लाइक अभी सेम चीज मैं बोलूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में तो एग्जांपल दूंगा कि यूएस की सिटीज कुछ तो दे वर प्रीटी वेल मेड, बट कुछ वर नॉट. लाइक वाशिंगटन वाज नॉट वेल मेड, व्हाइट हाउस वाज लुकिंग लाइक जस्ट मेरा घर होगा वैसे ही, मतलब रैंडम घर बना दिया था व्हाइट हाउस पे. तो बेसिकली कई डेवलपर्स आ गए थे, दे वर मेकिंग पेड एड ऑन फॉर द गेम, कि वाशिंगटन इंस्टॉल कर खरीद के यू जस्ट ऐड इट. बेसिकली जस्ट लास्ट few week back they released the new US update, and Washington के साथ काफी नई cities और काफी नए airport they just added and free of cost without anything, which would have been paid. like मैं explain वगैरह जो अलग इसी simulation like category में और games हैं, they all have like paid DLCs for each and every plane and each and every वो, यहाँ पर they are already providing it for free. and for like तुम $100 देकर रखे, if the game costs $100, you are trying to include everything in that. एडिशनल जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स कुछ बनाएंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट फर्स्ट पार्टी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, लाइक DLC. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अनलेस इट नॉट चेंजिंग द गेम प्ले, लाइक कोई लाइक स्पेशल स्किन निकाल दिया वो हो गया, लाइक PUBG मोबाइल में था,
और PUBG में भी है, लाइक स्किन वगैरह के लिए सफिशिएंट बिकॉज़ इट्स नॉट चेंजिंग द वे यू आर प्लेइंग द गेम. Odyssey was completely like that. अब सपोज करो कोई PUBG टाइप की गेम निकाल ले, बट वो तेरा एम एसेज पेड वर्जन बना दे, तो दैट विल बी लाइक that's what ये and all are doing, ये तो नहीं कर रहा. आई थिंक ये सुधर गया है मे बी, बट यूबीसॉफ्ट आई थिंक वो लाइन पे जा रहा है. यूबीसॉफ्ट इज गोइंग टू फुल पे टू विन थिंग, बिकॉज ओडिसी में वैसा था क्योंकि देयर वर 10 एबिलिटी एनहांसमेंट्स. ओके, सो वो 10 एबिलिटी एनहांसमेंट्स जो मैंने डीएलसी में लिए वो मैं दूसरे इसमें ले जा सकता हूँ. तो दैट इज जस्ट पे टू विन, इजीली पे टू विन है वो. उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते इवन विद एक्सपांशन एंड ऑल दैट. तो वो बेसिकली और गेम में है माइक्रो ट्रांजैक्शन एंड वो है, बट मैं सीधा इजी पे खेल के करता हूँ. आई जस्ट डोंट वांट टू फाइट एआई फॉर लाइक 10 and 15 hours meaninglessly. At the end of the day is like कुछ लोग तुम्हारे some developers care about their game, some of them don't. You know who CD Projekt Red is. उन्होंने Witcher 3 के साथ क्या किया है क्या नहीं किया तुमको सब पता है. Just give them time and this game will rock. I'm not saying this will be like a revolutionary game and all that. It will be a good game. Just you have to wait and watch. Actually खुद के hype का effect हो गया सच्ची में तो. हाँ, hype उन्होंने कुछ ज्यादा ही create कर दिया. And लोगों ने उसको और push भी किया ना, बढ़ा दिया. तो see and what I'm trying to say here is कि तुम future में भी कौन सा game आए, कितना भी अच्छा लगे कितना भी, just keep very low expectations from it. Like zero expectations, क्योंकि जब तुम उसमें जाओगे तो सब एंजॉय करने को मिलेगा. It will be like a different thing अगर तुम zero expectations रख रहे हो. बट अगर तुम्हारे expectations लाइक मुझे ये चीज चाहिए, मेरे 100 out of 100 expectations ये पूरे होने चाहिए, वो तो नहीं होने वाला बाबा, किसी भी गेम में नहीं होने वाला. Anyway, thank you for watching. See you in the next episode.